recently you have published a book titled Energy Laws in India. And you were also the author of Guide to Electricity Laws in India, which was the first law book based on Electricity Act 2003. So, sir, today can you discuss with us the amendments for this act, that is Electricity Act 2003, and how many times it was amended? Absolutely, absolutely, sure. So this amendment question is very, very important. And किसी इन्होंने भी पूछा था, हमारे कोई डेलीगेट ने भी पूछा था कि अमेंडमेंट के बारे में. So let us understand in stage one as to how many times Electricity Act has been amended. Electricity Act has been amended directly 3 times. In fact, directly 2 times. Indirectly 3 times. So total 5 times Electricity Act 2003 has been amended. Twice it has been amended directly, and 3 times it has been amended indirectly. First direct amendment to the Electricity Act was done in 2003 itself. So 2003, first the electricity bill was passed in the Lok Sabha, and then Rajya Sabha, while the Rajya Sabha was passing the electricity bill, there was huge opposition in the Rajya Sabha with respect to passing of the bill, because there was a provision that Appellate Tribunal of Electricity will be in administrative control of all the state electricity regulatory commission. So administrative control was equal to what the control of Supreme Court is with respect to all the high courts. So a Supreme Court of India can transfer judges of the High Court. It also has say in appointment of the judges of the High Court. So similar kind of powers were given in the Electricity Act to Appellate Tribunal of Electricity. So in Rajya Sabha, the representatives of the states were of the view that indirectly you were taking control of our authority, actually, state's authority. इसके लिए जो वहां उस समय पावर मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु जी, he said that please let this act be passed and immediately I will introduce an amendment act to rectify the situation. So इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास हो गया, उसके बाद इमीडिएटली एक अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट करा गया पार्लियामेंट में, और उस अमेंडमेंट बिल में जो पावर्स थी अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, उनको डाइल्यूट कर दिया गया. ठीक है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल, वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड इशू ऑर्डर्स. These are statutory functions. So first amendment 2003 में हो गया. Second amendment हो गया after 2004. The government changed actually. So the next government, they did a lot of review of the Electricity Act कि कहाँ क्या गलतियां हैं उसमें, या कहाँ modification is required, and consultation was done. But fortunately during the consultation process, all the state governments said that they have already been consulted and they are okay with the act. So मोटा act सबने बोला कि ये तो act बहुत अच्छा है, इसमें massive और major amendments की जरूरत नहीं है. Only minor amendments were required, जैसे power of the police authority to investigate, या open access on payment of surcharge, या specify electricity supply code. तो ये जो amendment, जो state specific amendments है, those were introduced in 2007. So second amendment, direct amendment of the Electricity Act, took place in the year 2007. All right. Now let us talk about indirect amendments. So there were 3 indirect amendments. First indirect amendment was in 2010. So 2010 में Special Economic Zones Act 2005 was amended, and it was provided in the Electricity Act Section 14, and proviso were added. Developers of special economic zones will be deemed to be distribution licensees. So if there is a special economic zones and there is a developer who is developing the special economic zones, he need not take a license from State Electricity Regulatory Commission. He can become a distributor of electricity and distribute electricity. उसका अपना मीटर रहेगा, उसके अपने systems रहेंगे, उसका अपना रहेगा. So this was the indirect amendment. First, वो special economic zones को amend करा गया था. Second indirect amendment was Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, wherein Electricity Act was extended to the state of Jammu and Kashmir. So earlier, in the previous original parent act, Electricity Act 2003, it was
except for the state of Jammu and Kashmir. But after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Electricity Act now extends to the whole of India. Third is the Tribunals Reforms Act 2021. So Tribunals Reforms Act में सारे ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स हैं उनके जो पर्क्स एंड परक्विजिट्स हैं, क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, उसको यूनिफॉर्म करा गया. So that was the third indirect amendment. So total 5 times the Electricity Act has been amended. Twice it has been amended directly, and 3 times it has been amended indirectly. Hope I have answered the question. Back to you, Namrata. Yes, sir. Thank you so much. Sir, last year in 2022, Electricity Amendment Bill 2022 has been passed. So can you also enlighten us with its implication on power sector? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट रीच करना चाहती थी आफ्टर 2007 ऑनवर्ड्स, इट वाज नॉट एबल टू डू एक्चुअली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, एंड सेवरल अमेंडमेंट बिल्स वर प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा एंड लोकसभा. सो 2008 में भी राज्यसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल प्रोड्यूस करा. फिर गवर्नमेंट ने 2014 में लोकसभा में कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा, जो भी विच डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे. फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2015, 17, 18 में लोकसभा में प्रेजेंट करा गया, बट इट वाज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ड्राफ्ट रिलीज करा फॉर डिस्कशन. दैट आल्सो डिड नॉट सी द लाइट ऑफ डे. फाइनली इन 2022 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, व्हिच इज स्टिल पेंडिंग. So what will be the result of that amendment bill is yet to be seen. कि वो पास होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया है. बट देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन एज टू कि अमेंडमेंट बिल में प्रोवाइड क्या क्या करा गया है. इसको दूसरे वे में देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस थे जिसको वो सॉल्व करना चाहते थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेशर्स क्या क्या थे. फर्स्ट प्रेशर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था के पास था, वो है क्लाइमेट चेंज का इशू. सो इन ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज there are international commitments which government is giving for climate change, mitigating climate change. और उसको एक इसका सॉल्यूशन है एनर्जी ट्रांजिशन. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एनर्जी ट्रांजिशन के बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड करने थे. दैट वाज वन ऑब्जेक्टिव व्हिच गवर्नमेंट हैज टू टेक इट फॉरवर्ड. सेकेंड इशू जो ये आ रहा था, इशू मतलब घूम घूम के इशू था. कोल इंडिया सेड कि हम अपना कोल का प्रोडक्शन स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं. सो गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई आप अपना कोल का प्रोडक्शन स्केल अप क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई. उनका ये कहना था कि देयर आर माउंटिंग ड्यूज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, और माउंटिंग ड्यूज जो है किसको पे करना है, वो पे करना है जनरेटिंग कंपनीज को. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी वर नॉट पेइंग टू कोल इंडिया लिमिटेड. बिकॉज ऑफ दैट द कोल इंडिया लिमिटेड कि हम अपना प्रोडक्शन जो है स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. When government said कि हाँ ठीक है, जेनकोस को क्या प्रॉब्लम है, why are you not paying to the Coal India Limited? So जेनकोस का ये कहना था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हमारे माउंटिंग ड्यूज है 1 लाख करोड़ प्लस, they are not paying us in a timely manner. So second इसका सॉल्यूशन, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म. तो जेनकोस के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना था जिससे कि वो भी अपना they remain solvent and they are able to pay to Coal India Limited also. So second was payment security mechanism, and this payment security mechanism is also connected to energy transition. Because if solar companies, भाई thermal companies के लिए तो Coal India में strengthen हो जाएगा. Solar companies, they have taken a lot of debt actually. If they become insolvent, there will be very grave challenge for energy transition also. So second जो solution था वो payment security mechanism include करना था Electricity Act में. थर्ड इशू ये आता था, सो आंध्र प्रदेश इन 2019 they started renegotiation of power purchase agreement. Gujarat and Punjab also states also started renegotiation of power purchase agreement. So इसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में इशू आ रहा था, चैलेंज. दे वांटेड टू एंश्योर स्ट्रेंथेड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इन इंडिया. सो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट को रीच करना था वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का था. फोर्थ इशू ये था
कि जो सब्सिडी अरियर्स थे, देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ फंड्स इन द डिस्कॉम्स. So 56 discoms as of now are in red. Poor financial conditions. So financial viability of the power sector, especially discom, had to be maintained. Solvency of power sector had to be maintained. तो fourth objective जो करना था, गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द पावर सेक्टर. फिफ्थ स्टेप, भाई 1991 से एक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हो रहा है. रिफॉर्म का मतलब क्या है? तीन चीजें: अनबंडलिंग, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. अब इन तीन स्टेप्स को आगे ले जाना था. रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म्स, ये पांच ऑब्जेक्टिव्स. देयर आर आई हैव टॉक्ड अबाउट चैलेंजेस. इन चैलेंजेस के पांच ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखा दिए. इन पांच ऑब्जेक्टिव्स को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में इंक्लूड करना था. ये चैलेंजिंग टास्क था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंक्लूड करा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में टू सॉल्व दीज चैलेंजेस एंड इंप्लीमेंट दीज सॉल्यूशंस. ऑलराइट, ये पांच गोल्स हैं. सो फर्स्ट गोल वाज एनर्जी ट्रांजिशन. एनर्जी ट्रांजिशन क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थे. उसके लिए नंबर वन स्टेप जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में लिया गया वो है स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्करेंस ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट. तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में ये डिसाइड करा गया कि एज पर दिस एक्ट द गवर्नमेंट विल मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्करेंस ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट. पीएसपी के भी प्रोजेक्ट्स हो या हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हो, ट्रांसपेरेंट वे में दे कैन गेट अप्रूवल एंड क्विकली दे शुड गेट अप्रूवल. सेकेंड, एनर्जी स्टोरेज वॉज इंक्लूडेड. एनर्जी ट्रांजिशन का पार्ट है, ये इस गोल का पार्ट है, एनर्जी स्टोरेज. So in future, once this amendment act is passed, मैं कह रहा हूं अभी पांच चीजें हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैं कहूंगा छह चीजें हैं पावर सेक्टर में: जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, सो इंक्लूजन ऑफ एनर्जी स्टोरेज हो गया. थर्ड इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की ट्रेजेक्ट्री प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. अभी तक ट्रेजेक्ट्री जो प्रिस्क्राइब करती थी वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करती थी. बट आफ्टर, इफ दिस एक्ट गेट्स implemented, then the trajectory of renewable purchase obligation will be provided by central government. ये वो एनर्जी ट्रांजिशन के गोल पे लगा है. फोर्थ इज penalties for non-compliance of RPO, renewable purchase obligation was provided. तो फर्स्ट गोल जो क्लाइमेट चेंज का था, जहां पे एनर्जी ट्रांजिशन करना था, तो चैलेंज क्लाइमेट चेंज का था, एनर्जी ट्रांजिशन करना था. उसके लिए चार स्टेप्स ले लिए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में, वो बिल के पार्ट. सेकेंड इशू था पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कि भाई चाहे कोल इंडिया हो चाहे जेनकोस हैं, उनके लिए यह प्रोवाइड करा गया कि नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इज एम्पावर्ड टू डिसकंटिन्यू डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलेस एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इज प्रोवाइडेड. इनडायरेक्टली भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट, बट अमेंडमेंट एक्ट में भी दिस हैज बीन प्रोवाइडेड. थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए चार स्टेप्स लिए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में. प्रोवाइड सी आई विल नॉट से कि हो गए, बिकॉज अभी वो पास नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं करा. इट हैज नॉट बिकम एक्ट, इट इज ओनली एट अ डिस्कशन स्टेज. सो फर्स्ट इज जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए स्टेप लिया गया है, वो फर्स्ट स्टेप है 1 member बेंच ऑफ फॉर एडजुडिकेटिंग मैटर्स. सो हर कमीशन में, हर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में एक जो जुडिशियल मेंबर है, शायद वो उसको बना दिया गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एंड ही विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट. सो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट फास्ट हो सके. सेकेंड स्टेप जो लिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर विद लॉ बैकग्राउंड. सो इट विल बिकम मैंडेटरी. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन डायरेक्शन, एक जजमेंट आ गया है, पर वो गाइडलाइंस की तरह है. इस एक्ट बनने के बाद दिस विल बी एनफोर्स्ड. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स विद लॉ बैकग्राउंड, तो एक मेंबर हमेशा लॉ बैकग्राउंड का रहेगा ऑल द रेगुलेटरी कमीशन. थर्ड जो स्टेप लिया गया, रिटायरमेंट एज ऑल्सो हैज बीन इंक्रीज टू 67 फॉर ऑल द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन. फुल टर्म दे विल डू. फोर्थ स्टेप लिया गया है, ऑर्डर्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर एनफोर्सेबल एज डिक्री ऑफ सिविल कोड. सो एनफोर्समेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कोई डिसीजन देती है, लेकिन प्रॉपर्टीज बंदे की उत्तर प्रदेश में है, now the person can
file an execution in civil court in Uttar Pradesh and enforce the decision of a Gujarat Electricity Regulatory Commission. There is a very different important है, क्योंकि पावर कंपनीज तो पूरे इंडिया में काम करती है ना, ठीक है. सो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए स्टेप्स लिए गए. अब 4th फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ पावर सेक्टर के लिए 3 स्टेप्स लिए गए. फर्स्ट स्टेप इज सुओ मोटो रिविजन ऑफ टैरिफ and interim tariff. So if the regulatory commission sees that the distribution company is not filing annual revenue requirement for increase of tariff, it can itself revise the tariff. It can also give interim tariff so that DISCOMs, the financial viability of the power sector is maintained. Second thing which has been provided in the amendment bill is cost reflective tariffs. Third thing which has been provided is entrusting work of other SERC in certain cases. There has been we have been seeing even in Appellate Tribunal of Electricity कि साल भर 2-2, 3-3 साल तक मेंबर्स और चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होते हैं. एंड चेयरपर्सन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. तो चेयरपर्सन CERC, चेयरपर्सन JERC, चेयरपर्सन ऑफ SERC इज द चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है सारे डिसीजंस वो लेगा, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता, एफिडेविट भी नहीं फाइल कर सकता, अनलेस एंड अनटिल रेगुलेशंस में एक डेलीगेशन ऑफ पावर कर दिया गया है. अगर डेलीगेशन ऑफ पावर रेगुलेशंस में नहीं करा है तो इवन सेक्रेटरी कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ द कमीशन. है सेक्रेटरी भी है, ऑफिसर्स भी है, पर चेयरपर्सन नहीं है तो कमीशन इज एज गुड एज डिसफंक्शनल एक्चुअली एज पर द एक्ट, बिकॉज ऑफ सेक्शन 84 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स चाहे चेयरपर्सन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये प्रोवाइड करा गया है कि एडिशनल इफ देयर इज वेकेंसी देन अदर रेगुलेटरी कमीशन कैन टेक ऑन द चार्ज. सो अगर उड़ीसा का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरपर्सन मेंबर कोई भी नहीं है तो मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव इट टू मे बी नियर बाय स्टेट छत्तीसगढ़ कैन टेक ओवर दैट चार्ज. ऑल राइट. उसके बाद ऑर्डर्स, ये तो हमारा हो गया. अब रिफॉर्म्स, 5th और फाइनल पॉइंट पहुंच जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में प्रोवाइडेड है, रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर जो लॉन्ग ड्यू थे. फर्स्ट रिफॉर्म्स इज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग. डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे एज अ कंपनी. सेकेंड, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज. तो देयर कैन बी मोर देन 2, 3, 4 लाइसेंसीज. एंड इसमें एक और कैच है कि लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई करा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ द रेगुलेटरी कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इट विल बी डीम्ड लाइसेंस. Third is non-discriminatory open access and distribution. And जो मॉडल लॉ है which can be made by जो फोरम ऑफ रेगुलेटर्स जो हमने बात करी थी, कोऑर्डिनेशन एजेंसी, इट कैन मेक मॉडल लॉस फॉर दैट. फिर उसके बाद एक चीज और भी प्रोवाइड करी है कि मैक्सिमम सीलिंग एंड मिनिमम टैरिफ विल बी प्रोवाइडेड बाय रेगुलेटरी कमीशन, जिससे कि कंपटीशन हो बहुत सारे डिस्कॉम्स के बीच में. सो इन सम वी कैन से कि बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि 2007 से डायरेक्ट अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का नहीं हुआ है. 2007 से आप ये देखो कम से कम 16 साल हो गए एक्चुअली. एंड पावर सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट है. सो क्लाइमेट चेंज के लिए एनर्जी ट्रांजिशन फर्स्ट गोल था. फिर उसके बाद सेकेंड गोल था पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म. थर्ड गोल जो था गवर्नमेंट का वो था कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट. फोर्थ गोल गवर्नमेंट का था फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ पावर सेक्टर. एंड 5th गोल था पावर रिफॉर्म. इन 5 गोल्स को अलग अलग प्रोविजंस में इंक्लूड करा गया है अमेंडमेंट बिल में 2022 के. बट दीज अमेंडमेंट बिल्स इट इज ओनली इन बिल फॉर्म, दे हैव नॉट बिकम एक्ट.